Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online session. In today's lecture, we will discuss the sources of organic compounds such as fossil fuels, and afterwards we will see the synthetic organic compounds and the difference between partial and total synthesis for the formation of synthetic organic compounds. Dear students, talking about organic compounds, we did discuss in the last lecture that organic chemistry is a branch of chemistry in which we study organic compounds, or you can say organic chemistry is a branch of chemistry in which we study hydrocarbons and their derivatives. Today we are going to discuss that what are the main sources of organic compounds. So mainly they are derived from plants and animals. So many organic compounds are obtained directly from plants and animal sources by suitable methods of isolation. Few examples are carbohydrates including cellulose, sugar and starch, protein including silk, wool, etc., fats and oils including cottonseed, soybean oil, alkaloids, those are used in for medicine purposes, etc., including quinine and morphine, etc., and then hormones, vitamins, perfumes, flavors and resins. So all these things are from plants and animal origin, and these are organic in nature. The main sources of organic compounds are fossil fuels. You need to remember that the plants and animals, those were alive thousands of years ago, or you can say millions of years ago, when their bodies decomposed in the presence of high pressure and absence of oxygen, they got converted into fossil fuels such as coal, oil, gas, etc. These are termed as fossil fuels and they are the major sources of organic compounds. जब कोल ऑयल और नेचुरल गैस को आप पढ़ते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. अदर देन दैट यू शुड नो कि पेट्रोलियम की जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास आते हैं. So, coal, oil and natural gas are the fossil fuels, remains of plants and animals that lived millions of years ago. ये असल में होते क्या हैं कि उन plants और animals के remains हैं जो millions of years ago पहले हुआ करते थे और बाद में उनकी bodies decomposed हुई within the earth. और conditions क्या ज़रूरी होती हैं उस decomposition के लिए? हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इनको इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल और इनसे बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हासिल किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, एज हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस स्लाइड कि मीथेन गैस व्हेन बर्nt इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज़ रिलीज. दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर कुकिंग पर्पजेज एक्सेट्रा, क्योंकि मीथेन गैस को आप कुकिंग पर्पजेज के लिए यूज़ करते हैं. नाउ डिस्कसिंग दीज fossil fuels one by one. Firstly, I'm going to discuss coal. Coal is a major source of organic compounds. It yield coke and coal tar on pyrolysis or destructive distillation. जब इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो उससे आपको कोक और कोल टार मिलता है. आपने याद रखना है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ को हीट करते हैं और उसके अंदर से जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऑब्टेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो उस चीज़ को आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर कोई मिक्सचर पड़ा हुआ है, उसको मैंने हीट करना शुरू कर दिया, तो वो उसका कंपोनेंट या उसके अंदर मौजूद वो कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोरेट होगा. हम उसको कंडेंस करके साइड पे कर लेंगे. आफ्टरवर्ड्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इवेपोरेट होगी चीज़ और हम उसको कलेक्ट कर लेंगे. यूँ हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. और जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है कोल की तो आपको कोक और कोल टार मिलता है. कोल टार को यूज़ किया जाता है सड़कें बनाने के लिए रोड्स के ऊपर. एंड दीज
products such as that is coal tar and coke are further used for preparing many other thousands of useful uh, organic compounds including aromatic compounds. और aromatic compounds से आगे से perfumes, drugs, dyes और बाकी चीज़ें बनती हैं. तो आपने याद रखना है कि मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, और आगे से इनको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हासिल किए जा सकते हैं. Now coming towards natural gas and petroleum. Natural gas and petroleum are now the major sources of organic compounds. They are used as fuels also through synthetic organic reactions for the production of hundreds of useful organic substances such as solvents, synthetic rubber, explosives and plastics. तो ना सिर्फ इनको आप फ्यूल्स के तौर पे यूज़ करते हैं बल्कि बहुत सारी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है. सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, जिनको आप लोग लेबॉर्ट्री में बनाते हैं. नो टॉकिंग अबाउट द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप लोगों ने याद रखना है. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली प्लांट्स और एनिमल से लिया जाता है. सेकेंडली मैंने आपको बताया कि मेजर सोर्सेज जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल ऑयल और नेचुरल गैस. और ये कैसे बनते हैं? वो प्लांट्स और एनिमल्स जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ करते थे, जब उनकी बॉडीज़ डिकम्पोज हुई एक पर्टिकुलर अरसे में, over the course of millions of years, in the presence of high pressure and absence of oxygen under the surface of the earth, तो वो बन गए कोल, ऑयल और नेचुरल गैस. उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से भी आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले सकते हैं. थर्डली जो मैंने बताया है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लेबॉर्ट्री में भी सिंथेसाइज करा सकते हैं. Today we know number of organic compounds prepared in the laboratory including fibers, plastics, drugs, vitamins. तो ये सारी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं लेबॉर्ट्रीज़ में भी, और इनको कहा जाता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बहुत सारी ड्रग्स को तैयार किया गया जैसे ग्लाइकोल, एस्पिरिन एट्सेट्रा. सो दे आर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है दैट इज़ टर्म्ड एज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर कोई एंजाइम एक्ट करता है और उससे प्रोडक्ट बनाता है, या आप यूँ कह लें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो और उससे निकलने वाला एंजाइम जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को आप फर्मेंटेशन का नाम देते हैं. द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज़ नोन एज जाइमोलॉजी. इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP. And here are some examples of the product formed by fermentation including beer, wine, yogurt, cheese, etc. Now dear students, you need to remember that for the synthesis of synthetic organic compounds, two methods are being used. One is partial synthesis, other one is total synthesis. We are going to discuss the difference between the two. Number one, partial synthesis. When a desired compound is obtained from the intermediate product of reaction, then it is termed as partial synthesis. For example, when carboxylic acid is obtained by the oxidation of aldehyde, skipping the oxidation of alkanes and alcohols. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम ये जानते हैं कि जब अल्केन को लेते हैं और अल्केन की ऑक्सीडेशन होती है तो आपके पास अल्कोहल्स आते हैं. अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से आप एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड. तो हम ये जानते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम अल्केन्स हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते जाएं तो एंड प्रोडक्ट आपके पास आएगा ऑक्सीडेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर इस पूरे कोर्स ऑफ रिएक्शन को फॉलो करने की बजाय आप अंदर से सिर्फ एल्डिहाइड को पकड़ें और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें तो ये होगी पार्शियल सिंथेसिस. लेकिन अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल अल्केन से शुरू करें और उसकी ऑक्सीडेशन करा के अल्कोहल बनाएं, अल्कोहल से आप एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाए, तो दैट विल बी टर्म्ड एज टोटल सिंथेसिस. इंटरमीडिएट वो होता है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनने वाली चीज़ होती है. तो अगर आप किसी इंटरमीडिएट को उठाकर उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करें तो वो होती है पार्शियल सिंथेसिस. लेकिन अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल से शुरू करें और आप एंड प्रोडक्ट अपना बनाएं तो वो होती है टोटल सिंथेसिस. सो एज हैज़ बीन मेंशन्ड हियर दैट पार्शियल सिंथेसिस when a desired compound is obtained from an intermediate product of reaction called partial synthesis.
For example, when carboxylic acid is obtained by the oxidation of aldehydes, skipping the oxidation of alkanes and alcohols. और टोटल सिंथेसिस क्या होगी, एग्जाम्पल पे फोकस करें. C2H6 अल्केन है, इसकी ऑक्सीडेशन की तो C2H5 अल्कोहल आया. अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो CH3CHO एल्डिहाइड आया, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो वी विल गेट CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर ये पूरे कोर्स ऑफ रिएक्शन को फॉलो करते हैं तो दैट विल बी टर्म्ड एज टोटल सिंथेसिस. That is all for today. Thank you so much.